Hello students, I hope you are doing good along with your family, and today I am going to teach you grammar chapter 3rd, that is the parts of speech. Everybody knows about parts of speech. It is a very important topic, and English grammar there are 8 parts of speech. First one noun, second pronoun, third verb, fourth adjective, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction, and eighth interjection. These are the parts of speech, but today we will discuss about first part of speech, that is noun. That is noun, and it is a very important topic, and everyone knows about noun. What is noun? A noun is the name of any person, place, thing और idea. नाउन किसी भी पर्सन के नेम को, प्लेस के नेम को, थिंग के नेम को, एनिमल के नेम को या फिर आइडियाज़ को हम नाउन कहते हैं. एंड इन बेसिकली सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन. नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन. नेमिंग वर्ड जो हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं. नेमिंग वर्ड मतलब जिसका भी कोई नाम होता है वो हमारा नाउन कहलाता है. लाइक अब ये तो आपको पता है जनरली कि हर चीज़ का एक नेम होता है, तो जो भी चीज़ को हम कोई नाम दे देते हैं वो हमारा नाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, राजू, बॉय, गर्ल, रोहित, दिल्ली, सिटी, विलेज, वुड, गोल्ड, पुलिस, हैप्पीनेस, love, anger, height, childhood, etc. These are the nouns. Okay, let's see some sentences. How can we use noun in these sentences? First one is Anu sang a song. तो here हमने नेम दिया, एक नाम दिया अनु, और एक सॉन्ग हुआ हमारा, तो ये हमारा नाउन है. एंड इन सेकेंड सेंटेंस, माई फैमिली लिव्स इन देहरादून, तो फैमिली here is noun and Dehradun also noun. And in third sentence, Goa is a nice place. Goa एक place का name है और place एक स्थान है, that is why here is noun. And in fourth sentence, the dog is a faithful animal. तो एक animal है dog और animal, that is the name of noun. I hope कि आपको समझ आया होगा what is noun. Now kinds or types of noun. There are 5 kinds of noun. First, proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and material noun. So one by one we'll know about these 5 kinds of noun. First one is proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. जब हम किसी भी पर्सन को, प्लेस को और थिंग को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, इट मीन्स एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आगरा, रेड फोर्ट, सोनिया, Renault, etc. These are the examples of proper noun. Let's see some sentences. How can we use proper noun in the sentences? First one is, my name is Dimple Thakur. Dimple Thakur here is a specific name of a person. In second sentence, Delhi is national capital of India. Here दिल्ली सिटी नेम है, एक सिटी के नेम को हमने एक पर्टिकुलर नेम दिया है दिल्ली, दैट इज़ वाई हेयर इज़ प्रॉपर नाउन. एंड इंडिया एक कंट्री है, कंट्री का नेम है इंडिया, दैट इज़ वाई हेयर इज़ प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया है कंट्री को. नाउ जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी. अब जयपुर हमारा एक सिटी है एंड उसको किस नाम से कॉल किया जाता है? पिंक सिटी के नाम से उसको बुलाया जाता है. एक स्पेसिफिक नेम दिया कि जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी, दैट इज वाई हेयर इज प्रॉपर नाउन. एंड फोर्थ,
माई फ्रेंड टीचेस इन आर्मी पब्लिक स्कूल। यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम दिया है स्कूल को, आर्मी पब्लिक स्कूल। नाउ इन फिफ्थ सेंटेंस, आई लाइक टू ईट डाबर हनी। यहाँ पर हनी को नेम दिया, स्पेसिफिक नेम दिया डाबर, दैट इज वाई हेयर इज प्रॉपर नाउन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉपर नाउन। Once again, I am telling you a proper noun is the name of a specific person, place or thing. Okay. Now we will move to the common noun. A name that is used commonly for persons, things or place is called common noun. जब हम commonly किसी person के लिए, thing के लिए, place के लिए एक name use करते हैं तो वो हमारा common noun कहलाता है. Okay, let's some examples. Boy, dog, pen, man, woman, town, friend, etc. These are the example of common noun. जब हम किसी भी person को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को एक कॉमन सा नेम दे देते हैं तो ये हमारा कॉमन नाउन कहलाता है. कॉमन नेम देंगे, यदि हम उसे स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है, लेकिन यदि उसे कॉमन नेम देंगे तो वो हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स एंड हाउ कैन वी यूज दीज कॉमन नाउन इन द सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज बॉयज लाइक टू प्ले फुटबॉल. बॉयज, अब यह है बॉयज. बॉयज हमने जनरली नेम दिया है, उनको एक कॉमन नाम दिया है, बॉयज प्ले फुटबॉल. देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स इन चंडीगढ़. अब चंडीगढ़ में पार्क्स हैं, हमने तो वहाँ पर ही हमने इस कॉमन नेम दिया कि पार्क्स हैं चंडीगढ़ में. माई फ्रेंड बोरोड अ फ्यू बुक्स येस्टरडे. माई फ्रेंड यानी इट मीन्स फ्रेंड यहाँ पर एक कॉमन नेम है और एक बुक्स है तो ये भी एक कॉमन नेम है, दैट इज वाई हियर इज कॉमन नाउन. एंड इन फोर्थ सेंटेंस, पीपल लाइक टू लिव इन सिटी. पीपल यहाँ पर कॉमन नाउन है, कॉमन सा नेम दे दिया है, सिटी शहर है उसे कॉमन नेम दिया है. एंड इन फिफ्थ सेंटेंस, टीचर प्लेज अ रोल ऑफ गाइड, मेंटर एंड मोटिवेटर इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट. यहाँ एक कम्युनिटी बताई गई है टीचर की. जनरली इसको एक नेम दिया गया है, कॉमनली टीचर को गाइड कहा गया है, मेंटर कहा गया है, मोटिवेटर कहा गया है. किसके लाइफ में? स्टूडेंट के लाइफ में. दैट इज़ वाई हेयर इज कॉमन नाउन. आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन. नाउ वी विल मूव टू द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन कि प्रॉपर नाउन क्या होता है एंड कॉमन नाउन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ओके, फर्स्ट प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हमने आपको बताया कि स्पेसिफिक नेम दे देते हैं किसी भी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को, और जनरली हम प्लेस को, एनिमल को, थिंग को एक कॉमन नेम दे देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है. फर्स्ट, स्विफ्ट कार. देखो यहाँ पर कार है, ठीक है. अब कॉमन नाउन में देखो यहाँ पर जनरली क्या है? नॉर्मल कार, इसको एक कॉमन नेम दिया गया है कार, बट इसको एक हमने स्पेसिफिक नेम दिया स्विफ्ट कार, तो ये हमारी क्या बन गई? प्रॉपर नाउन हो गया. कार कॉमन नाउन और हमने इसको स्पेसिफिक नेम दिया तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ. ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड कॉमन नाउन गर्ल. कॉमन सा नेम दिया कि दिस इज अ गर्ल एंड और इसको हमने नाम दिया कनक. इस गर्ल को नेम दिया कनक, एक स्पेसिफिक नेम दिया तो ये हमारी क्या बन गई? प्रॉपर नाउन बन गई. ओके, नाउ डियो. डियो हमारा एक कॉमन नेम है, ठीक है, और यदि हमने उसको नाम दे दिया एक्सेल डियो, एक्सेल डियो एक डिओड्रेंट का नाम दिया हमने एक्सेल डियो, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन बना क्योंकि हमने इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया है. जनरली हमने आज यूज़ किया है फैन. फैन एक कॉमन नेम है, बट यदि हम उसको नाम देंगे ऊषा फैन, एक स्पेसिफिक नेम दिया ऊषा फैन, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, बल्ब्स.
बल्ब हुआ हमारा, ठीक है। बल्ब हमारा एक कॉमन नेम है कि ये बल्ब है, बट यदि हमने इसको नेम दिया सूर्या बल्ब, एक स्पेसिफिक नेम दिया सूर्या, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। नेक्स्ट, बुक, कॉमन नाउन है, कॉमन नेम दिया कि ये जनरली क्या है, बुक है, बट यदि हमने इसको कहा रामायणा, तो ये हमारी क्या बन गई कि स्पेसिफिक नेम दिया कि दिस इज द रामायण बुक, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। नाउ अब ये हमारी यहाँ पर हट है, कॉमनली यहाँ पर हमारी हट है, कॉमन नेम दे दिया इसको हट, लेकिन यदि हम इसका नाम रख देते हैं मिकी हट, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ क्योंकि हमने इसको स्पेसिफिक नेम दिया है मिकी। आई होप यू हैव properly differentiate between proper and common noun. Okay, and one more thing, proper noun always, keep one thing in your mind कि proper noun always start with capital letter, जो हमारा proper noun होता है वो always start with capital letter. Okay, now collective noun. Collective noun, a name is given to a group of people, animals or things of the same kind regarded as a single unit is called a collective noun. जब हम किसी भी पीपल के ग्रुप को, एनिमल के ग्रुप को, थिंग के ग्रुप को जो एक सेम ही काइंड का हो उसे एक नेम दे देते हैं, सिंगल यूनिट में एक नेम दे देते हैं, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इन जनरली वर्ड्स वी कैन से दैट ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल, एनिमल्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। लाइक क्लास, देखो स्टूडेंट्स की क्या होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को हमने अब उन्हें अलग अलग नेम से तो नहीं बुलाएंगे, अरे हमने उसका ग्रुप बनाया और ग्रुप को कहा क्लास, तो स्टूडेंट्स की क्या हुई क्लास। लोगों की क्राउड, पीपल की क्या हुई क्राउड, एंड प्लेयर्स की क्या हुई टीम, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। नाउ लेट्स सी ए ग्रुप ऑफ डांसर, डांसर के ग्रुप को क्या कहते हैं ट्रूप। ए ट्रूप फ्रॉम अफ्रीका केम टू इंडिया, अब हम इस सेंटेंस में हाउ कैन वी यूज दिस ट्रूप इन द सेंटेंसेस, लेट्स सी। A troop from Africa came to India. That is the example of collective noun. Now second, a group of singers, choir. Singers के group को बोलते हैं choir. तो this choir sang a patriotic song. Now a group of keys. Keys के group को क्या बोलते हैं bunch. I lost a bunch of keys yesterday. Now a group of cows, buffaloes. काउस और बफेलोस के ग्रुप को वी कैन से हर्ड। लेट्स सी हाउ कैन वी यूज इन द सेंटेंस, माई फ्रेंड कीप्स अ हर्ड इन हिज फील्ड। नाउ ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड बकेट, वी गिफ्टेड अ बकेट टू आवर न्यू मैनेजर। These are the examples of collective noun. I hope you have understood. Okay, now these are the examples of collective noun. These are the examples of collective noun. A herd of buffaloes. Buffaloes के ग्रुप को क्या बोलते हैं हर्ड। थीव्स के ग्रुप को गैंग। डांसर के ट्रूप। जजेस के बेंच। एंड शिप्स के फ्लीट। सिंगर्स के कोयर। बीज के स्वाम। वॉल्व्स के पैक। पपीज के ग्रुप को लिटर। प्लेयर्स के ग्रुप को टीम। चिक्स के ग्रुप को ब्रूड। एंड टूल्स के ग्रुप को बॉक्स। एंड स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टेलेशन। एंड फ्लावर्स के बकेट। ट्रीज के ग्रुप। फिश के शॉल। रूम्स के शूट। एंड आंट्स के ग्रुप को कॉलम। एंड स्टिक्स के ग्रुप को बंडल। एंड ड्रॉर्स के ग्रुप को चीट बोलते हैं। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। ओके,
Now, abstract noun. Abstract noun in name is given to a quality, state, feeling और इमोशन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जब किसी भी क्वालिटी को, स्टेट को, फीलिंग को और इमोशन को एक नाम दिया जाता है तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच. हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सीन भी नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते हैं. वी कैन ओनली फील. Okay, let's see example. Courage, childhood, anger, excellence, privacy, etc. These are the examples of abstract noun. Abstract noun को we cannot see or touch, only we can feel, and it has not physical existence. इसका कोई physical existence नहीं होता है. We can only feel it. Okay, so move to the examples. First one, the length of the rope had to be 5 centimeter. The length here is abstract noun. His knowledge about the earth is very good. Knowledge here is the example of abstract noun. Wisdom cannot be bought. Wisdom here is abstract noun. Every parent should ensure the safety of their children. Here safety is abstract noun. Okay students, I hope you have understood abstract noun. Now material noun. Material noun, the name of a material of substance of which things are made of. ऐसा मटीरियल या सब्सटेंस जिससे दूसरी थिंग्स बनाई जाती है इज कॉल्ड मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, कोल, मिल्क, सुगर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल नाउन. अब यहाँ पर देखिए, कोल से डिफरेंट थिंग्स बनाई जाती हैं. एंड मिल्क से डिफरेंट थिंग्स बनाई जाती हैं. चीज़ बना लेते हैं ना, चीज़ हुआ, फिर हमारा खोया हुआ, लाइक दैट. एंड सुगर, आयरन से हम डिफरेंट टाइप्स के फर्नीचर्स वगैरह बना लेते हैं. एंड गोल्ड से हम ऑर्नामेंट, सिल्वर से भी ऑर्नामेंट्स बनाते हैं. और जो वुड होती है, लकड़ी से हम डिफरेंट टाइप का फर्नीचर बनाते हैं. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल नाउन. Okay, material noun. There are two types of material noun. First one is countable noun. First one होता है countable and second one uncountable noun. तो can be counted, जो काउंट किया जाता है वो material noun, countable noun कहलाता है. Like books, pencils, pen, glass, toffees, etc. वी कैन काउंट. हम बुक्स है, पेंसिल्स है, पेन है, फैंस हैं, ग्लास है, टॉफ़ीज़ हैं, फैंस हैं, विंडोज़ है, इनको काउंट कर सकते हैं. तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन. एंड अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड. जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अब मिल्क है, शुगर है, टी है, ऑयल है, वुड है, वाटर एक्सेट्रा. These are the example of uncountable noun. मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, शुगर को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, टी को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, ऑयल को भी काउंट नहीं कर सकते हैं. हम इनको मेज़र कर सकते हैं केवल क्वांटिटी में. इनकी क्वांटिटी कितनी है तभी हम मेज़रमेंट कर सकते हैं. अदरवाइज वी कैन नॉट काउंट दीज मटीरियल नाउन. ओके, and let's see some examples of countable noun. There are three glasses. अब देखो, हमने एक ग्लास है, 1 2 3, 3 ग्लास हैं, ये तो हमने काउंट किए. बट जो इसके अंदर मिल्क है या वाटर है, उसकी क्वांटिटी है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. I saw 3 camels on the desert. 3 camels डेजर्ट में, मैंने 3 डेजर्ट में 3 कैमल्स देखे. तो कैमल 3 हमने काउंट कर लिया, 1 2 3, तो ये काउंटेबल है. नाउ 9
बॉक्सेस आर केप्ट ऑन द ट्रे. अब ट्रे है, ट्रे में कितने बॉक्सेस हैं? 9. हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है. ओके. नेक्स्ट, रीना हैंग्ड 4 पिक्चर्स ऑन द वॉल. रीना ने 4 पिक्चर्स वॉल पर हैंग की. 1 2 3 4. तो हमने काउंट किया है 1 2 3 4. दे आर 4 पिक्चर्स. ओके. नाउ देयर इज सम मिल्क इन द जग. जग में कुछ मिल्क है. अब मिल्क को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. आई होप कि आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज नाउन एंड हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन. ओके. नाउ इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइज टू रिवाइज. अब हम एक्सरसाइज के थ्रू रिवाइज करेंगे. State underline nouns given in the each sentences. अब यहाँ there are 4 sentences. You have to select one noun that is the right noun used in the sentences. First one is Rajesh is a manager in Titan company. राजेश अंडरलाइंड वर्ड को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है विच नाउन इज यूज इन द सेंटेंसेस. तो here is 3 noun, common noun, proper noun and abstract noun. You identify the right noun. तो राजेश एक स्पेसिफिक नेम दिया एक पर्सन को, और एक कंपनी है, कंपनी को ने स्पेसिफिक नेम दिया टाइटन. तो here is proper noun. Okay, I am right. Now in second sentence you will give me the answer. Sugar is needed to cook sweet dish. Here sugar, identify, where identify sugar, proper noun, collective noun, material noun. Sugar, give me the answer fast. Yes, material noun. Very good. Now a few boys are intelligent in my class. Boys, firstly give me the answer. Common, proper, abstract noun. Yes, give me the answer first. Boys, yes, common noun. Very good. Now Indian cricket team has won the match recently. Here team, give me the right answer. Common noun, collective noun, abstract noun. Yes, fast. Give me the right answer. Yes, collective noun. Good, very good. Yes, you are right. Okay, students, this is the exercise. Okay, thank you.